चलिए जी, टुडे वी विल डू व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation involving an independent variable, a dependent variable, and the derivative of dependent variable with respect without any arbitrary constant is called what a differential equation. This is important. Without any arbitrary constant is what a differential equation. The highest order derivative appearing in the differential equation is what the order of the differential equation. Highest order derivative dy by dx first order, d2y by dx square second order. जो भी सबसे बड़ा डेरिवेटिव रहेगा that is the order of the differential equation. Number of arbitrary constant in the general solution of the differential equation is what the order of the differential equation. The degree of the differential equation is what the index of the highest order derivative. What is the degree? Degree is the index of the highest order when no derivative is under any radical sign or no derivative is in the denominator. Radical sign means square root, cube root, fourth root. They are called what? Radical sign. Very important, number of arbitrary constant in the particular solution of the differential equation of order 3. Number of arbitrary constant पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज हाउ मच? 0. एंड इन द जनरल सोल्यूशन इट विल बी हाउ मच? 3, because number of arbitrary constant is what the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन? वो लोगों ने दिया रहता है व्हेन x इज 0 y इज 1, उससे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑलवेज 0. जनरल सोल्यूशन में इट विल बी व्हाट? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. चिंदी चिंदी प्रॉब्लम्स करते हैं. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of the solution ax plus by plus c equal to 0. 2012 में आया था. इसको मैं लिख सकता हूँ ax upon c plus by upon c is equal to -1. Constant upon constant is what? A constant. Constant upon constant is what? A constant. How many arbitrary constant? 2. So what will be order of the differential equation? Order will be how much? 2. फॉर एग्जाम्पल बड़ा वाला लेते हैं. देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? c1 इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. करेक्ट है? ये वाला टर्म पहला लेता हूं. दिस विल बिकम प्लस c6 इंटू साइन एक्स कॉस c7 माइनस कॉस एक्स साइन c7. करेक्ट? And now this term c3 plus c4 a raised to x into a raised to c5. a या 2 ले लेते हैं, जाने झंझट नहीं तो इसको भी आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सोचना पड़ेगा. ओके, तो इसको अगर आपने 2 ले लिया तो दिस विल बिकम हाउ मच? 2 2. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं? c1 cos c2 minus c3 sin c7 into cos x. Correct? These two terms, sin x common लिया तो this will become how much? Plus c3 cos c7 minus c1 sin c2 into sin x. एंड कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k1 इंटू 2 रेज टू x. नाउ दिस इज कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट एंड k1 2 raised to x. So how many arbitrary constants? There are 3. So what will be order of the differential equation? 3. झेपा क्या भैया? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 3. अगर 3 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका ये एक कांस्टेंट हो जाएगा इसका. 2 3 4 और 5. अगर 3 नहीं है, 5 ये ऑप्शन में, तो 5 लिखिए. नहीं तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस टू. आपको दिख रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद देयर आर हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट? 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है ना.
highest order. And what is degree? Degree is not defined. If the derivative is what with logarithm, sine function, cosine function, exponential function, the degree is what? Not defined. लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा दिया रहेगा log of dy by dx is equal to suppose x plus y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equal to e raised to x plus y. तो here degree is defined because we have converted this log into what? This term, exponential term, और इसमें exponential में there is no derivative. So here order is defined and degree is also defined. For example, अगर ऐसा है log of dy by dx is equal to d2y by dx square, तो how much will be dy by dx? It will be e raised to, तो ये e raised to है, इधर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव है, सो डिग्री इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. झेप रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉग के अंदर अगर कोई भी डेरिवेटिव रहेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन फंक्शन, फॉर एग्जांपल dy बाय dx, साइन इनवर्स dy बाय dx इज इक्वल टू a, तो how much is dy by dx? dy by dx will be how much? Sin a. So order is defined, degree is defined. E raised to dy by dx equal to x. So how much will be dy by dx? Log x. Order is defined, degree is also defined. Order is 1, degree is 1. समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी डिफाइन नहीं होता है when ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर उसके साथ डेरिवेटिव रहेगा. अभी इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, दिस विल बी e raised to this thing. तो अगेन e raised to, there is what? Differentiation, derivative, so the degree is not defined. Order is defined. Order is what? The highest order derivative. Find the differential equation of all the lines parallel to this line. So what will be the equation of a line parallel to this line? 3x plus 2y equal to k. One arbitrary constant, so differentiate with respect to x only once. तो क्या हो जाएगा आपका? 3 plus 2 dy by dx is equal to 0. No arbitrary constant, therefore this is what? The required differential equation. सेम प्रॉब्लम अगर पैरेलल के जगह पे परपेंडिकुलर रहेगा, सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द लाइन? ये दोनों को इंटरचेंज करो, साइन चेंज करो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू k. One arbitrary constant k, so differentiate with respect to x what? Once you will get 2 minus 3 dy by dx is equal to 0. This is what the required differential equation. चलिए जी पैराबोला के ऊपर करते हैं. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज विथ वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड व्हाट? वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. ठीक है भैया, मतलब क्या हो गया है आपका पैराबोला? अगर आपको आता रहेगा तो दिस इज योर पैराबोला. Vertex is at the origin, equation will be of the form x square equal to 4ay, one arbitrary constant, differentiate with respect to x only once, 2x is equal to 4a into dy by dx. So how much will be more a? More a will be 2x upon dy by dx. If you substitute this, यहाँ पे more will be eliminated because the differential equation should not contain what? Any arbitrary constant. तो आपको equation क्या मिल जाएगा? एक x cancel हो जाएगा, x dy by dx minus 2y, this is equal to 0. X dy by dx minus 2y equal to 0. This is a differential equation. Differential equation is an equation containing what? Derivatives of any order and any degree without any arbitrary constant. इसका मैं ज़्यादा कर रहा हूँ problems. Find the differential equation of all the parabolas which has 4a as its latest rectum and whose axis is parallel to x axis. ये देखिए, ये हो गया आपका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ऐसे बहुत सारे पैराबोलाज आपको मिलेंगे जिसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उन्होंने मोरे दिया है, तो हम वर्टेक्स लेंगे एच के. So what will be equation of the parabola? Y minus k the whole square is equal to more into x minus h. How many arbitrary constants are there? 2, h and k. क्योंकि more is given in the problem, so this is which constant? Fixed constant. 2 arbitrary constants, so we will differentiate this equation with respect to x how many times? 2 times. 2 into y minus k dy by dx, this will become more.
ये कैंसिल हो जाएगा. अगेन इफ यू डिफरेंशिएट दिस विल बिकम हाउ मच. UV rule say it will become y minus k, derivative of dy by dx is d2y by dx square, that is y2, plus y1, derivative of y1 minus k is y1, derivative of this is how much, 0. इसमें से y माइनस के कितना है, 2a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. तो 2a अपॉन वाई वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आप लिख सकते हैं 2a वाई टू प्लस वाई वन क्यूब इज इक्वल टू 0. No arbitrary constant, so this is what the required differential equation. Order कितना है भैया, 2. Degree कितना है, 3. That is wrong. Degree is the index of the highest order. Degree is the index of the highest order. Next problem please. Find the differential equation of all the parabolas whose axis is the y-axis. Okay भैया, axis is what, the y-axis. तो ये हो गया आपका वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 कॉमा के. व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोरे इंटू वाई माइनस के. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोरे इंटू व्हाट, वाई माइनस के. हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, 2. यहाँ पे ए लेना है आपको कांस्टेंट, क्योंकि दिया नहीं है प्रॉब्लम में. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 4ak. डिफरेंशिएट 2x, दिस इज इक्वल टू 4a dy बाय dx, इसका हो जाएगा 0. अगेन डिफरेंशिएट 1 इज इक्वल टू 2a इंटू d2y बाय dx स्क्वायर. बट फ्रॉम दिस हाउ मच इज 2a, 2a is x upon dy by dx, so 1 is equal to x upon y1 into y2. तो एक्स वाई टू माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू 0. समझ रहा है क्या, आपको सिर्फ इलिमिनेट क्या करना है ये. व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 2 बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज व्हाट, द ऑर्डर. एंड डिग्री इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. इंडेक्स म्हणजे पवार, पवार इज हाउ मच, 1. Find the differential equation of family of parabolas. Find the differential equation of with focus is at the origin and axis of symmetry along the x axis. Okay भैया, मतलब ये है आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस. और पैराबोला आपका ऐसा है बिकॉज उन्होंने फोकस क्या दिया है, 0 0. तो ये लेंथ अगर ए लिया तो ये आपका लेंथ कितना होने वाला है, मोरे. what will be the equation, equation will be y square is equal to more into x minus a, बिकॉज ये आपका होने वाला है a0 या माइनस a0, आप कुछ भी ले सकते हो. तो y square is equal to what, 4a into x minus a. So this is what, this is the equation of the parabola. Y square is equal to more ax minus more a square. इसका कोई भी टेंशन नहीं है, माइनस लो प्लस लो, बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0. डिफरेंशिएटिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x वंस 2a dy by dx is equal to how much, 4a. अपने 4a उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा. या a का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, a will be eliminated, you will get the required differential equation. Y square equal to 4a into x minus a. But you have to differentiate only once because there is only one arbitrary constant. Order is 1. Find the differential equation of family of circles having their center on the line y equal to 10 and touching what, the x axis. Circle दिया है, okay, and what is given, it is touching what, x axis, and the center is what, center is on the line y equal to 10. ये है आपका y equal to 10, ये है आपका x axis. यहाँ से सेंटर से अगर मैंने लाइन मारा है तो ये इसको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. ये x एक्सेस है तो ये हो गया आपका 10. खड़ा वाला ये इज y कोऑर्डिनेट, तो सेंटर क्या हो गया, h, 10. So what will be equation of the circle, equation of the circle is x minus h the whole square plus y minus 10 the whole square, this is equal to 10 square. This is center radius form. How many arbitrary constant, 1, so differentiate with respect to x only once.
2 into x minus h plus 2 into y minus 10 dy by dx is equal to 0. So how much is x minus h? Minus of y minus 10 dy by dx. ये मैंने उठा के इसमें डाल दिया तो h विल बी इलिमिनेटेड. उसका स्क्वायर कितना आता है? y माइनस टेन द होल स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस y माइनस टेन द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. तो y माइनस टेन द होल स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 100 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. जल्दी बोलिए, ऑर्डर कितना है 1, डिग्री कितना है 2, बिकॉज ऑर्डर इज व्हाट? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 मतलब dy by dx और उसका इंडेक्स इज व्हाट? द डिग्री. Find the differential equation of the family of circles touching the x-axis at the origin. Find the differential equation of the family of circles which is touching the x-axis at what? The origin. It is touching what? The x-axis at the origin. ठीक है ना भैया? तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका x-axis हो गया है, ये आपका ओरिजिन हो गया है. तो आपका जो सेंटर है वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा? वाई एक्सिस के ऊपर. करेक्ट. सेंटर आपका वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा. लेट अस सपोज सेंटर विल बी हाउ मच? 0 कॉमा k. करेक्ट. on the y axis x coordinate is 0 and radius will be how much? K. Correct. So what will be the equation? Equation of the circle will be x minus 0 the whole square plus y minus k the whole square. This is equal to k square. So x square plus y square minus 2ky plus k square is equal to k square. झेप रहा है क्या? सी इट टचेस द एक्स एक्सेस एट द ओरिजिन. मतलब ये जो लाइन है ये इसको क्या रहता है? परपेंडिकुलर. तो ये क्या हो गया आपका? वाई एक्सेस. म्हणजे सेंटर इज ऑन द वाई एक्सेस. ऑन द वाई एक्सेस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. वन आर्बिटरी कांस्टेंट. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली वंस. 2x plus 2y dy by dx. This is equal to 2k dy by dx. करेक्ट है ना भैया? इट इज 2k डिवाइड बाई डी एक्स. 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका k कितना आ जाएगा? k विल बी x प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स. तो ये अगर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे तो आपको आंसर मिल जाएगा. इट टचेस द एक्स एक्सेस म्हणजेच k का वैल्यू आपका कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky. दिस इज इक्वल टू टिम्बर टिम्बर टिम्बर. ठीक है. Equation of the ellipse is x square upon 36 plus y square upon 16 equal to k. Form the differential equation of the ellipse whose length of the major axis and minor axis is half the length of the given ellipse. इसमें a आपका कितना है? 6. आपका b कितना है? 4. आपका 2a कितना है? 12. आपका 2b कितना है? 8. ये है आपका लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ व्हाट? द गिवन एलिप्स. करेक्ट. आपका लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इनसे हाफ है तो आपका a हो गया 3 और b हो गया 2. इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू k. वो k को इधर नीचे ले लो. मेरे को समझ रहा है अगर आपने इधर k को इधर नीचे ले लिया तो इधर कितना आने वाला है? 6 रूट k, क्योंकि राइट हैंड साइड शुड बी हाउ मच? 1. ये कितना आ जाएगा? 6 रूट k 4 रूट k. ये आ जाएगा 12 रूट k 8 रूट k. आधा हो गया तो ये हो जाएगा 6 रूट k 4 रूट k. तो ये कितना हो जाएगा? 3 रूट k 2 रूट k. तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 9k प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4k इक्वल टू 1. k को उधर ले लिया. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली वंस, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36k. इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? 8x प्लस 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. that is 4x plus 9y dy by dx equal to 0. Required differential
इक्वेशन। जेप्राइक का मैं ये टाइप के सम कर रहा हूँ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ फिक्स रेडियस 5 एंड सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 2। Center is on the line y is equal to 2. Center is on the line y equal to 2. रेडियस दिया है 5, तो सेंटर कितना हो जाएगा h, 2. व्हाट विल बी द इक्वेशन? x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। वन आर्बिटरी कांस्टेंट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सिर्फ ऑर्डर पूछा है तो कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑर्डर आपको कितना मिल जाएगा? 1। तो हाउ मच विल बी x माइनस एच? माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। टिंग टिंग टी टिंग। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके, ये सब था उसमें। बाकी आपको मालूम है शायद, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू f1 x comma y upon f2 x comma y, where f1 and f2 are what? homogeneous functions of x and y of the same degree। homogeneous मतलब सबके पावर सेम रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? homogeneous differential equation। and we can solve the differential equation by substituting y equal to v upon x। CET में आ सकता है, 4 इक्वेशंस दिए रहेंगे, which of the following are what? homogeneous differential equation और non homogeneous। homogeneous का मतलब क्या है? होमोजेनियस का मतलब क्या है कि सबके पावर्स क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। और dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये देखो ये सेम सेम रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेर p एंड q आर व्हाट? टर्म्स ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे p एंड q आर व्हाट? द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट टर्म। दिस आर कॉल्ड व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आ सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये याद रखिए, ये y रहेगा तो y, p और x इन टर्म्स ऑफ व्हाट? x और कांस्टेंट टर्म। ये x रहेगा तो ये x, p एंड q आर व्हाट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? y और कांस्टेंट टर्म। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और इसमें e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dy। if मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी आ सकता है CET में। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, दिस इज द सोल्यूशन। और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशंस। में प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा हूँ, सेम सेम आप लोग टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स कीजिए। we will do some theory part of probability distribution। A random variable is a function associated with each outcomes of the sample space S of a random experiment and is denoted by what? Capital X, standard notation। Okay, the random variable which assumes countable number of isolated values is called what? Discrete random variable। integers रहेगा उसको बोलते हैं discrete, और अगर interval में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? continuous random variable। okay, if a discrete random variable have values x1 x2 x3 dot 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 xn with corresponding probabilities timber, sum of the probabilities is always equal to 1, this is called what? PMF, probability mass function। A cumulative distributive function, word cumulative आपको पता है, is a discrete random variable x defined as f of x। capital F means what? Cumulative distribution function where p is what? x less than or equal to x। cumulative means ऊपर ऊपर का सब ऐड करना है। domain is all real numbers, codomain is 0 to 1 included। याद रखिए, ये किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं? cumulative distributive function सॉरी। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स आई? समेशन ऑफ पी आई। उसके पहले के सब प्रोबेबिलिटीज हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मीन डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स, म्यू ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। वेरियंस डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई। what is e of x? summation of xi into pi। यहाँ से लिया है ढक्कन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? रूट ऑफ द वेरिएंस। a random value, a real value function is called probability density function, pdf। pdf किसके लिए रहता है? continuous random variable के लिए। उसमें इंटीग्रेशन रहता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, f of x dx is equal to what? 1। now if p is alpha less than or equal to x less than beta, or alpha less than or equal to beta, कुछ भी रहेगा, less than or equal to or less than, it is always integral of alpha to beta f of x dx। very very important इसमें, if x is a continuous random variable with pdf f of x, then the cdf, cumulative distributive function
कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एज व्हाट, दिस इज लोअर लिमिट जो भी दिया रहेगा टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, what we find cumulative distribution of function का meaning क्या है, we find area under the curve y equal to f of x to the left of xi. मतलब ये जो अगर आपका ग्राफ है, ये पॉइंट अगर है xi, तो ये एरिया हम फाइंड करते हैं लेफ्ट ऑफ दिस कर्व. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. रेंज ऑफ एक्स अगर ए बी दिया है तो एफ ऑफ एक्स इज जीरो व्हेन एक्स इज व्हाट, लेस देन ए. कॉमन सेंस लगाइए, ये आपका कर्व है, ये है आपका ए टू बी. ए से अगर कम रहेगा तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जीरो. यहाँ क्या रहती है, जीरो. ओके, और ये सबको मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, वन. इससे कम रहेगा तो कितना आने वाला है, जीरो. और बी से बड़ा करेगा, मतलब ये पूरा नीचे का पूरा ऐड करना है, तो ये कितना आने वाला है, वन. ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड इट इज इक्वल टू जीरो. ये मेरा फेवरेट है, ये आ सकता है आपको एमसीक्यूज में, याद रखिए. ये अगर बी, ये जो रेंज है इससे बड़ा रहेगा तो एफ ऑफ एक्स इज हाउ मच, वन. छोटा रहेगा, इससे रेंज के बाहर चला गया तो दिस विल बी हाउ मच, जीरो. नीचे चला गया तो जीरो, ऊपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज इक्वल टू हाउ मच, वन. ओके, probability of x greater than x is how much, 1 minus probability of x less than or equal to x. less than or equal to x रहेगा तो ये कितना आ जाएगा, f of x. probability of alpha less than x less than beta is how much, f of beta minus f of alpha. अगेन वही नाटक है भैया जी. ये अगर आपका x इक्वल टू अल्फा है, ये है आपका x इक्वल टू बीटा, तो f ऑफ बीटा मतलब इधर के पूरा, f ऑफ अल्फा मतलब ये निकाल दिया, तो बचेगा क्या आपका, इतना सा. तो इट इज f ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा. क्या बोल रहा है भैया जी, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये अगर आपका कर्व ले लिया है, ये है आपका पॉइंट अल्फा, ये है आपका पॉइंट बीटा, ये है फ्रॉम ए टू बी लिया रहेगा सपोज पूरा टोटल, तो ये आपको फाइंड करना है, ये बीच में का, करेक्ट. ओके, तो जब भी आप फाइंड करते हो एफ ऑफ बीटा, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक फाइंड करते हो, लेस देन. जब भी आप फाइंड करते हो एफ ऑफ अल्फा, मतलब ये पूरा फाइंड करते हो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको ये रीजन मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा. तो पी ऑफ अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा इज हाउ मच, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ. व्हाट इज मीन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, व्हाट इज वेरियंस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस मीन स्क्वायर, इट इज सेम एज दैट थिंग. ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फॉर्मूला, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू n minus x, it is also q plus p raised to n. इसका क्या होता है, ये rth टर्म होता है. p is probability of success, q is probability of failure or not success, where p plus q is equal to always 1. mean is np, variance is npq, e of x is always greater than or greater than v of x. mean is always greater than what, variance. याद रखिए. A random experiment which has only two mutually exclusive outcome. Mutually exclusive मतलब उनका intersection is empty set, namely success or not success, also called as what, failure, is called what, dichotomous experiment. okay, ये word ऐसा टेंशन मत लीजिए, इसमें दो ही आउटकम्स रहते हैं, सक्सेस और फेलियर. if a dichotomous experiment is repeated n times and in each trial probability of success is constant, then all such trials are called what, बर्नौली ट्रायल्स. याद रखिए ये वर्ड्स, अगर कुछ आ गया तो एग्जाम में. एन एक्सपेरिमेंट ऑफ n repeated independent Bernoulli trials is called what, Bernoulli experiment. x of, this is what, x is the random variable, Bernoulli ये क्या है, binomial distribution n comma p, then y will be how much, n minus x, this is what, failure, correct. if the x, तो ये कितना आता है, n minus x. okay, and p of x equal to r is the rth term in the expansion of q plus p raised to n. ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है. mode of binomial distribution is that value of x for which probability of x equal to r is maximum. दो तीन प्रॉब्लम्स करते हैं इसके बारे में और खत्म कर देते हैं लेक्चर. a random variable x b n comma p, if value of mean and variance are 18 and 12 respectively, then the total possible values of x. ये आया था एग्जाम में CET 2017 में, ठीक है. मीन दिया है 18, वेरिएंस दिया है 12,
मीन इज NP, वेरियंस इज NPQ, डिवाइड कर देंगे तो Q विल बी 2/3, therefore P will be how much? 1/3. N into 1/3 is equal to 18, so N is equal to 54. सब लोग ने 54 टिक किया था, लेकिन उन्होंने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछा है. x इज व्हाट? द रैंडम वेरिएबल. तो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये कितना हो जाएगा? 55. ये कहाँ से आया बुड्ढे, हमको समझा नहीं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3 coins are tossed. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3 coins are tossed. Okay. X is the random variable of getting what? Number of heads. X is what? The random variable of getting what? Number of heads. अभी 3 coins are tossed और a coin is tossed 3 times. दोनों का मीनिंग क्या है? सेम. तो आपका n कितना हो गया? करेक्ट. यहाँ पे आपको n कितना मिला है? 54. ओके. नाउ x इज ऑफ गेटिंग हेड्स. तो हेड्स कितने हो सकते हैं? आइदर 0 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स और 3 हेड्स. तो ये कितना हो गया? 4. 1 एक्स्ट्रा. समझा क्या? रैंडम वेरिएबल x पूछा है, इट विल बी व्हाट? 1 एक्स्ट्रा. समझ रहा है? इफ 5 कॉइन्स आर टॉस्ड और अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो आपका n कितना हो गया? 5. X is the random variable of getting number of tails. So number of tails can be 0, 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये रैंडम वेरिएबल्स कितने हो गए? 6. तो हमेशा याद रखिए, रैंडम वेरिएबल क्या रहने वाला है? एक ज्यादा. रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा? एक ज्यादा. नहीं समझा? देखिए, थोड़े से और दो प्रॉब्लम्स लेता है. A bag contains 4 red and 3 white balls. 3 balls are drawn. If x is the number of white balls, then find x. तो बॉल्स कितने ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? 3. तो आपका x कितना आएगा? आइदर 0 और 1 और 2 और 3. जेपा क्या? यू कैन ड्रॉ व्हाट? 0 बॉल्स, 0 वाइट बॉल्स और 1 वाइट बॉल और 2 वाइट बॉल और 3 वाइट बॉल्स. तो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कितने हो गए? 4. बॉल्स कितने हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं? 3. जेपा. ये देखिए, कंफ्यूज करने के लिए, 3 बॉल्स आर ड्रॉन. अभी 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो आप x क्या लिख देंगे? 4. वेयर वी हैव 4 रेड and 2 white balls. What is x number of red balls? Correct. तो x can take values what? 0, 1, 2 और 3. तो x आपका कितना हो गया? 4. अगर आप सोचेंगे तो this will become wrong. Why? देखिए, when you are drawing, when you are drawing 0 red balls, means you are drawing 0 red balls, that is all 3 are white balls. करेक्ट. लेकिन व्हाइट बॉल्स उन्होंने कितने दिए? 2 ही व्हाइट बॉल्स दिए हैं. टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करने के हैं? 3. बट इफ यू टेक x as 0, this condition is what? This condition is not possible, because you cannot draw 0 balls. You can draw minimum 1 red ball. मतलब क्या आएगा? 1 red and 2 white. जब भी x 2 रहता है, 2 रेड एंड 1 वाइट, और x जब भी 3 रहता है तो 3 रेड एंड 0 वाइट. समझा क्या मैं क्या बोल रहा है? आपने अगर x 0 लिया तो 0 रेड एंड 3 वाइट, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम वी हैव 2 वाइट बॉल्स. Okay, so x will have only 3 numbers, 1, 2 and 3. So x will be how much? 3. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा. स्टैंडर्ड आ गया. अगर आपको कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे n पूछा है, ये आया था 2017 में, सब लोग 54 टिक करके आए थे. व्हेन n is 54, मतलब an experiment is done how many times? 54 times. तो these are how many trials पूछा रहेगा, तो 54 trials are there. 54, because n is 54, तो number of trials is equal to what? Number of n. n is what? Number of trials. तो n will be 54, but x will be क्या है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 54 हो सकता है. तो x becomes how much?
55। समझ रहा है क्या? टेक्स्ट बुक कीजिए, टेक्स्ट बुक कीजिए, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं आता है, पेपर सिंपल रहता है, सिर्फ सिली मिस्टेक ज़्यादा होते हैं इसलिए मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी। दिस वाज अवर लास्ट सेशन ऑफ सीईटी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। टेक्स्ट बुक कीजिए, नोटबुक कीजिए, सब फॉर्मूले करके जाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।